Hello students, good morning. Myself, Mukesh Patel, taking science from 6th standard to 10th standard. Science being interesting subject, so I take science from 6th to 10th standard. Right now, standard 8 students, as we already studied in 6th standard and 7th standard about food and nutrition, right? Food, the nutrients in plants, these two things relates to this chapter crop production and management, right? How do such a large population of country or the world survive? They take food, right? Food, from where you get the food. For a large number of population, we need to produce food on a large quantity, right? So when a same kind of food is prepared on a large scale at the same place, that is known as crops. Okay. Now, why do plant and animals need food? First question: why we need food? So that we get energy. This energy helps the body to function different kinds of work. Different types of functions has to be done. For that we need energy. So energy is used by organisms to carry out various body functions like digestion. You know what is the meaning of digestion? Respiration and aspiration. These three are the basic function done in our body, all organisms, and for that we need energy, and energy is obtained from the food we take. Okay. Since there are large number of people in the world, for them food should be also produced in a large quantity, right? So it is very necessary. When we prepare food for a large number of people, it is very necessary that the food is produced regularly. First thing, regular production of food should be there. Okay. Second thing, proper management. Management means प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक हर एक व्यक्ति को फूड मिल सके वहां तक, दैट इज मैनेज करना, ताकि कोई भूखा ना रह जाए और किसी को ज़्यादा ना मिले, दैट इज प्रॉपर मैनेजमेंट। फूड प्रोडक्शन से लेकर, क्रॉप के प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक। ओके। थर्ड, इसलिए लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। ये 3 पॉइंट बहुत ही नेसेसरी है व्हेन वी प्रिपेयर फूड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सो सेम काइंड ऑफ प्लांट व्हेन grown on a large scale on a same piece of land, when plant of same kind are grown and cultivated at one place, only on one place, at the same piece of land on a large scale, that is known as crop, right? आप लोगों ने खेत देखा होगा, गेहूं का खेत होता है, चावल के खेत होते हैं, वेजिटेबल्स के खेत होते हैं, फ्लावर्स के होते हैं, फ्रूट्स के होते हैं, प्लांटेशंस के होते हैं, बनाना का, ग्राउंडनट का, कॉटन का, कहीं ना कहीं तो देखा होगा ना। तो जब बड़ी सी जमीन के एरिया में 1 बीघा 2 बीघा 5-5 बीघे में एक ही टाइप के प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, दैट इज ऑन द लार्ज स्केल इज कॉल्ड एज क्रॉप्स। बराबर है। सो इसमें एग्जांपल आ सकता है, सीरियल्स आ सकता है, वेजिटेबल्स आ सकता है, फ्रूट्स आ सकता है, ऑयल सीड्स आ सकता है। बराबर है। तो नॉर्मली जो व्हीट, राइस, पल्सेस तो आप लोग जानते हो। अब इंडिया, यू नो इट, 130 करोड़ पॉपुलेशन, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ वेराइटीज इन कल्चर, इन लैंग्वेज, ट्रेडिशन, फेस्टिवल्स, ये तो नॉर्मल बात है, ये सब तो हम जानते हैं। इनके अलावा हम अगर बेसिक पे चले जाएं, जोग्राफिकल लोकेशंस पर जाएं, तो इंडिया इज सच ए लार्ज कंट्री वेयर
We have different kinds of soil, different climatic condition, ह्यूमिडिटी अलग अलग है, रेनफॉल का पैटर्न अलग अलग है, वाटर अवेलेबिलिटी अलग अलग है, बराबर है। तो जैसे इंसान अलग अलग हैं, ऐसे नहीं, भाषा, ट्रेडिशन, बराबर, इसमें अलग है, वैसे हमारे देश में जमीन भी, क्लाइमेट भी, टेम्परेचर भी, सनलाइट का जो ड्यूरेशन है वो भी अलग अलग है। कहीं रेगिस्तान है तो कहीं पहाड़ है, कहीं पूरा घना जंगल है, कहीं सूखा जंगल है, कहीं खूब पानी, कहीं पानी ही नहीं है। सो यू अंडरस्टैंड लाइक दैट। सो इंडिया being a large country, population is large. So geographically, different climatic conditions, humidity, temperature, soil and rainfall, precipitation, etc. So many kinds are different in our country. अपने देश में सब अलग अलग है। इसी डिफरेंट क्लाइमेटिक, ह्यूमिडिटी के और टेम्परेचर के हिसाब से, सॉइल के टाइप से हिसाब से हमारे देश में 3 टाइप की क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं। ऑल 12 मंथ इन इंडिया वी प्रोड्यूस समथिंग और अनदर, राइट। तो पहला है फर्स्ट काइंड, खरीफ क्रॉप। खरीफ रेनी सीजन में होता है, ये आने वाला है अब, राइट। तो स्टार्ट होता है वो जून, मतलब ग्रोइंग सीजन, सोइंग सीजन, यानी जब बिया हुआ डालने वगैरह, दैट इज जून जुलाई, और उसका हार्वेस्टिंग होता है सितंबर, अगस्त सितंबर। ओके, एग्जांपल में जैसे पैडी, मेज, कॉटन, ग्राउंडनट एक्सेट्रा, ये जो सब टाइप नाम लिए हमने, ये सब क्या है, खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। रेनी सीजन में उगाया जाता है और रेनी सीजन बंद होता है तब उनको हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्ट मतलब उनको काट के निकालना, अलग कर लेना, ओके। तुरंत उसके बाद, सितंबर के बाद अक्टूबर में सोइंग सीजन स्टार्ट हो जाती है किसकी, रबी क्रॉप्स। तो सेकंड क्या है, रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स में वीट, ग्राम, चना, पी, मस्टर्ड, लिनसीड, बराबर, तिल बोलते हैं जिसको। तो ये सब एग्जाम्पल किसमें आते हैं, रबी क्रॉप्स में। थर्ड है जायद। टेक्स्ट बुक में नाम नहीं दिया है पर हमें ये समझ लेना है, आपके एसएस में आया जाएगा। तो जायद जो 2 मंथ रह गए, द 2 मंथ दैट इज लेफ्ट, समर सीजन, दैट इज अप्रैल, May. It can go to June also. Means sowing starts in February, March, right? April is the last sowing season, and harvesting starts from May to June, right? So this one is known as January. So what we grow in such thing is moong, udang, watermelon, right? So this etc. things comes in January. So what we studied here is, in India we have 3 common patterns, Kharif, Rabi and Zaid. Next session will start with how to manage this all production. Okay, clear, understood? Till then